من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. My dear fellows and students, I was taking one of the section on the infection and the disease, and in those part I have taken actually the Trepenoma Pallidum, and that is what we call as a disease of neglection, of disease which we are not considering nowadays. This is session 1 has been taken, and this is session number 2. Because it is a long run, I have cut short the first part of this lecture, and this is the second session. I am Professor S. Ali Hazar. I am Honorary Global Professor of Medicine without any name, fame or economics. Those who are interested to join, please join us. Anybody who is interested for third year to final year, anybody interested who are appearing in the examination, MCPS, FCPS, or the foreign examination of the United Kingdom territory or in the American territory. These are the knowledge, and knowledge is the power. You have to attain the ability. Actually, the thing is not to obtain the certificate or the degree. This is not the criteria. The confidence, you have to be very confident in diagnosing and managing these cases. Otherwise, as a physician or as a doctor, you are failed, because you have done a lot of exercises during your life, working very hard, and it is your hardness and it is your diligence which make you a successful person. But not only you are achieving the goal of knowledge, and knowledge gives you the confidence, and confidence gives the benefits to the patient. This is the slogan actually which I have. I will say that I have already said the Spirochhetes actually is a big genus. It is a phylum actually, and one is Trepenoma. You can say this is one of the genus Trepenoma, Pallidum, Trepenoma patuni, and Caritium, etc. Now there are a lot of Trepenomas which can infect the humans. Of the human interest is the Trepenoma Pallidum, which causes the Syphilis, and I have gone through very long run. Although it was not completely complete lecture, it is a summarized lecture which I have delivered previously. Today I want to discuss more than that. That is, we have done that the syphilis can occur in the stages wise. This is the property of the Trepenomas. The early stage, there is the primary syphilis, and then we go for the post-primary syphilis, that is the secondary syphilis, and then there is the latent syphilis, early late, or the delayed late syphilis, or we can say that is one of the part of the delayed syphilis is the tertiary syphilis. Now these are the stages which are described in the literature. And another important point which I want to tell you, that those who are migrating from this country to the other country for any purpose, they have to go through the medical examination. The medical examination means that they are dependent on the lab examinations, and they have to rule out many diseases, and one disease is syphilis. They do the test specifically for the syphilis. If it becomes positive, then the case will be discarded without asking anything, without going for any clinical examination. They discard it because of the positivity of the
test. This is the hallmark of anything. You are rejecting the application only because the case was positive. This should not be done like this. I will tell you a story afterwards. No. The syphilis will be classified accordingly. I already said now how to go for further diagnosis, and that is the problem. The main thing of the diagnosis in the syphilis is the history and the clinical representation and the clinical examinations. Because the person will not tell you that he has indulged sexual activity with the partner. He will not. It's very difficult. Because it is private life. You are asking some question regarding the private life. Whether the person is a male or a female. So they will not admit that they have practiced previously with the sexual indulgence, and that is the problem, because the history is not completed. So you should take this patient to the private room and tell him that if you are not diagnosing the disease properly, then this disease will kill you in any way, in 1 year, 10 years, after 20 years, after 30 years. So you will die in a very, very bad position, etc., etc. So he will be convinced and he will tell you the actual story. So syphilis is difficult to diagnose clinically during the early infection. It's a difficult one. Confirmation is either by the blood test or direct visual inspection. I mean, there are two types of tests, direct test or indirect test. The direct is the evidence of the direct evidence of the Spirochhetes in the lesion. That is called the dark field microscopy. And that is the gold standard diagnostic tool of the syphilis. If you will plus the clinical features or the history, then it is definitely a definitive diagnosis. But another test are the blood tests. There are many types of tests which I want to discuss. Now, usually people are relying on the blood tests, which are commonly used for the screening purpose, as they are easier to perform. ये जो ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो होता है शॉर्टकट्स ऑफ लाइफ. किसी को जो है कोई अगर प्रॉब्लम है मजहबी तौर पे, तो वो किसी पीर के पास जाएगा, फ़कीर के पास जाएगा या मज़ार में जाएगा, शॉर्टकट लगाएगा. और अगर फर्ज करें कि वो किसी और मसले में गिरफ्तार हो गया है, तो वो फिर किसी बाबा के पास जाके या किसी और के पास जाके वो फिर उन मसले को हल कराने की कोशिश करेगा कि जादू हो गया है, ये हो गया है वगैरह. शॉर्टकट है. आप खुद दुआ मांगें अल्लाह से, डायरेक्टली वो नहीं करेंगे. वो दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होकर वो समझते हैं कि वो उनका मसला हल कर देगा. ये तो शॉर्टकट्स ऑफ लाइफ है. इसी तरह आप अपनी तालीम को देखेंगे, एजुकेशन में, तो वो क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पढ़ लेते हैं लोग. जो समझते हैं कि अनइम्पोर्टेंट है वो छोड़ देते हैं. वही उनकी गलती होती है, क्योंकि जो बाद में प्रैक्टिसिंग लाइफ आती है उसमें वो जो केसेस आते हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते. तो शॉर्टकट से ये होता है कि आपको सर्टिफिकेट्स हैव बीन इशूड और लाइसेंस हैज़ बीन इशूड. हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे यू आर लाइसेंस्ड किलर्स. हमें कहते थे कि आपको लाइसेंस आ जाएगा किलिंग के लिए. अब आपको जो है ना, वो जाहिर है कि कोर्ट भी जो है ना कुछ सजा मौत तो नहीं दे सकता. आप प्लांटी लगा देगा या आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन कैद में डाल देगा, बस इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, PMDC का लाइसेंस है. तो इससे ये मसला तो हल ना हुआ ना, आपने आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया. तो शॉर्टकट्स ऑफ लाइफ है. तो ब्लड टेस्ट जो है वो शॉर्टकट्स हैं.
डायग्नोस्टिक टेस्ट आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेजेस ऑफ द डिजीज। ये स्टेजेस नहीं बता सकते, आपको क्लिनिकल फीचर ही बता सकते हैं सर। ये प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी है, पोस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी है, या लेटेंट है, या टर्शरी सिफिलिस है। दो टाइप के टेस्ट पॉसिबल हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ टेस्ट। पहले वाले जो टेस्ट हैं वो हैं, पहले तो आप ले लें ट्रेपेनोमल टेस्ट को, जो ट्रेपेनोमा के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट, जो ट्रेपेनोमा के अलावा जो आपके पास पूरा का पूरा जो है फाइलम है स्पाइरोकीट, तो वो नॉन ट्रेपेनोमल होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको जो है बता सके, लेकिन ये बता सकता है कि स्पाइरोकीटल इन्फेक्शन हो गया, इससे ज़्यादा वो नहीं बता सकता। तो ट्रेपेनोमल टेस्ट क्या है? बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉल्स पॉजिटिव विद द नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट, ये पॉसिबिलिटी ये कि नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट जो आप कर रहे हैं, जिनके बारे में बातचीत हो रही थी कि नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट जो होता है वो टेस्ट है जिसमें आपको ये पता चलेगा ट्रेपेनोमा से ताल्लुक़ नहीं है इसका, इसका पूरा फाइलम से ताल्लुक़ है। इसमें फॉल्स पॉजिटिविटी के चांसेस ज़्यादा हैं नॉन ट्रेपेनोमल में, ट्रेपेनोमल में चांसेस कम हैं। कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड विद द ट्रेपेनोमल टेस्ट सच है। इसमें ट्रेपेनोमा जो है वो टेस्ट किया जाएगा अलग अलग करके, ये अलग अलग टेस्ट होते हैं। ट्रेपेनोमा पैलिडियम, पैलिडम पार्टिकल एग्लूटेशन एसे, TPHA अवेलेबल है। और फ्लोरेसेंट ट्रेपेनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये 2 टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, मकबूल हैं। ट्रेपेनोमल एंटीबॉडी टेस्ट यूजुअली बिकम पॉजिटिव 2 to 5 वीक्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, अर्ली इन्फेक्शन। ये 5 वीक्स 6 वीक्स में पॉजिटिव हो जाते हैं। और न्यूरोसिफिलिस इज डायग्नोज्ड बाय द फाइंडिंग द हाई नंबर ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइटोसिस होगा इसमें, इसका मतलब है CBC में, एंड हाई प्रोटीन लेवल्स इन CSF। इसी तरह CSF के अंदर जो है वो आपको लिम्फोसाइटोसिस के अलावा जो मिलेगी वो हाई प्रोटीन कंटेंट मिलेगा इन द सेटिंग ऑफ द नोन सिफिलिस इन्फेक्शन। ये तो न्यूरोसिफिलिस की बात है, कार्डियोवास्कुलर में तो आप कर ही नहीं सकते, उसको कैसे करेंगे आप? आपके पास डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट एविडेंस तलाश कर सकते हैं न्यूरोसिफिलिस में, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। मैंने पहले ही कहा डायरेक्ट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो वो तो इसमें हो ही नहीं सकता। आप कर सकते हैं कि शंकर पे कर सकते हैं, आप गुमा बन गया है किसी का, उससे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। आप जो है फ्लूइड में किसी में जमा हो गया उससे कर सकते हैं, आप स्पुटम में कर सकते हैं, आप जो है वो CSF में कर सकते हैं। पॉसिबल लाइक दिस। सो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो बात ख़त्म हो जाती है, फिर इसमें कोई इधर ना हेरा ना फेरी। अब इसके बाद मैं बता दूँ आपको कि नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट, ये वो पेशेंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक पेशेंट है कि मेरे पास हॉस्पिटल में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो वो आया था और उसने बताया था कि वो कुवैत जाने वाला था, तो मगर कुवैत क्या जाता, वो तो मुल्क से बाहर ही नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं जा सकता कि उसके अंदर सिफिलिस जो है ना पॉजिटिव आया है। अच्छा, मैंने जो है ना इसको उसी तरह से डील किया कि मैं उसको अलग कमरे में ले गया, मैंने पूछा कि भाई आपका अपनी बीवी के अलावा किसी से भी कोई कांटेक्ट हुआ है, आपकी बीवी सेहतमंद है? उसने कहा ठीक है, और बच्चे हैं 2, वो भी ठीक हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनसे ये कहा, मैंने भाई हो सकता है कि आप बाहर गए हों मुल्क से, आप कारोबार भी करते हैं, वहाँ किसी से आपका एफिलिएशन हो गया हो सेक्सुअल। तो उन्होंने कहा नहीं होता, मैं ज़रूर आपको बता देता। मैंने कहा बेटा बात यह है कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। उसने कहा मैं आपसे बता रहा हूँ, बिल्कुल बात तय है कि मैं कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ अपनी बीवी के अलावा, 100% श्योर अबाउट इट। अब चाहे मौत आती है तो आ जाए, क्या कर सकते हैं। ये कहाँ से चला गया अंदर ये तो मुझे नहीं पता, ये इन्फेक्शन कहाँ से ट्रैवल हुआ है उसको नहीं मालूम, उसकी बुनियाद पे उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आप ख्याल कीजिएगा
ये वाला टेस्ट जो है, ये ट्रेपेनोमल टेस्ट, जो कि क्लिनिशियन की निगाह में जो है ना, या जो लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अहम टेस्ट हैं ये दोनों। ट्रेपेनोमल पैलिडियम पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट, ऐसे इसका ये टेस्ट, या FTABS यानी फ्लोरेसेंट ट्रेपेनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो हैं ये AQS से कराए गए हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं। इसके अलावा चुगताई लैब से भी ये पॉजिटिव है। यानी ये दोनों लैब, इसके नाम इसलिए लिए कि बड़ी एहतियात के साथ इसको करते हैं। इसको मैंने लिख के भी दोबारा जब दिया तो उन्होंने लिखा कि हमने डबल चेक किया है, ये पॉजिटिव है। और इसका जो टीचर भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। इसमें जो है ना एक जुमला याद रखिएगा कि फॉल्स पॉजिटिव जो है ना सीरोलॉजिकल रिएक्शन, इसकी बात हो रही है इन द वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस। जो वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस के अंदर जो है ये पॉजिटिव आ सकते हैं। ये जो है ना ये डिस्टिंक्ट डिसीजेज हैं जिनके अंदर ये पॉजिटिव आ सकते हैं। अब फॉल्स पॉजिटिविटी जो है ना इनके अंदर जो पॉजिटिव हो सकती है डिफरेंट कंडीशन में, अब वो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इसके अंदर कि आप जो है ना उन डिजीज़ को याद करें कि ये वो डिजीज़ है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कि डिपेंड कर रही है आपके फाइलम के ऊपर। फाइलम है स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीटल डिजीज। अगर कोई भी स्पाइरोकीटल डिजीज़ इस आदमी में पाई जाती है किसी किस्म की भी इसके अलावा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जो है ना स्पाइरोकीटल डिजीज़ तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस है, लाइम डिजीज़ है, और इसी तरह लैप्सिंग फीवर है। इसी तरह से जो है वो बीजल है, पिंटा है, ठीक है। नॉन विरेनल एक डिजीज़ होती है, नॉन विनीरल सिफिलिस कहलाती है, उसमें भी ये मसला होता है, जबकि कोई कांटेक्ट नहीं होता पेशेंट का किसी से भी, और फिर भी ये जो है ना ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाता है, उनमें भी पॉजिटिव आ जाता है ये। इसलिए ये कह देना कि ये सिर्फ सिफिलिस में पॉजिटिव होता है, 90% बात सही है आपकी, लेकिन असल मसला ये है कि ये फॉल्स पॉजिटिविटी वाला जो मसला है ये जो है ना बड़ा अहम है। अब इस आदमी की लाइफ जो है ना वो स्टेक पर हो गई है, बाहर नहीं जा सकता मुल्क से, नौकरी नहीं कर सकता, हर वक्त सोचता रहता है कि भाई मुझे जो है वो सिफिलिस हो गई। और ज़ाहिर है मैंने भी बताया था और डॉक्टर्स ने भी बताया कि ये जानलेवा है। तो हमने जो है ना इसको क्लासीफाई किया कि ये जो आ रहे हैं टाइटल्स जो आ रहे हैं ये असल में इस वजह से नहीं आ रहे हाई, बल्कि हुआ ये है कि इसको कोई और फाइलम ने इसी फाइलम में किसी और ऑर्गेनिज्म में, स्पाइरोकीट में उसने इन्फेक्ट किया है इसको, और उससे जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए जो है ना इसको हमने पेशेंट को क्या किया, फिर भी एहतियाती तौर पे जो है आप यूँ कह लें कि हमने जो है ना इस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया, थेरेपेटिक ट्रायल। अब थेरेपेटिक ट्रायल उसका दिया कि जो लंबे अरसे तक खा सके। मिसाल के तौर डॉक्सीसाइक्लिन ने, वो बहुत लंबे अरसे तक ये इस्तेमाल कर सकता था। मैंने 3 महीने तक इसको खिलाई, पहली मरतबा 3 महीने खिलाई। 3 महीने खिलाने के बाद किया तो इसमें ये हुआ कि TPHA जो था उसकी जो ऐसे था यानी क्वांटिटेटिव वो कम हो गया, लेकिन अभी भी जो है फ्लोरेसेंट ट्रेपेनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव आ रहा था। फिर 1 महीने का गैप दिया, फिर अब एक दफ़ा मैंने 6 महीने तक उसको दिया डॉक्सीसाइक्लिन को। अब जब टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव हो गया। जब वो नेगेटिव हो गया तो मैंने उसको दिखाया ये नेगेटिव है, दोनों में, दोनों लैब ने नेगेटिव किया है। मैंने सर्टिफाई किया कि ये टेस्ट जो है ये नेगेटिव है, इसके अलावा क्लिनिकल कोई भी क्लू नहीं है, लिहाजा इस आदमी को क्लियर किया जाए, इस आदमी को कोई बीमारी नहीं है। हमारी आपसी मुलाकात थी, वो मैंने पूरा सर्टिफाई करके उसको स्टैम्प किया। उस आदमी ने दोबारा अप्लाई किया, फिर उसने लैब से वो लिया सर्टिफिकेट, दोनों लैब से,
मेरा पर्चा दिखाया उसमें और उन्होंने भी सर्टिफाई किया कि ये पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो है नहीं है, इट इज़ नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड। तो आदमी कुछ है ही नहीं, स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए एमआरआई तक करा लिए गए, ब्रेन का एमआरआई, सीटी, एचआरसीटी, हर चीज़ करा दी गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कोई क्लू मिल जाए ना, कहीं से कोई क्लू मिल जाए, एकोकार्डियोग्राफी, एवरीथिंग हैज़ बिन डन, वो पूरी फाइल थी। वो गया दोबारा, तो उसको जो है ना वो जो कि वो लोग उन्होंने मीटिंग की आपस में और उसे फिर क्लियर किया, फिर दुबई के लिए उसको वीज़ा दे दिया। जिस दिन वीज़ा दिया वो जो था वो 10 किलो मिठाई लेके आ गया और उसने आके हॉस्पिटल में मुझे दे दी और कहा इसको आप खुद खा लें या बांट दें, ये खुशी में लाया हूँ मैंने पूरे हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ थे उनको दे दी। मैंने कहा भाई आप लोग खाएं और ऐश करें, कि हमने एक ऐसी चीज़ पकड़ ली है कि जो कि ज़ाहिर की बात है कि ज़रा कमी नज़र आती है। और आदमी भी कोऑपरेटिव था, वो अभी ठीक ठाक है बिल्कुल। वो दुबई से आता है तो यहाँ मुलाकात करता है, वो टेस्ट कराता रहता है इसके। ये वाला तो ऐसे है, ये कम से कम हो गया है, जबकि ये अभी भी पॉजिटिव है, यानी अभी पॉजिटिव वीक पॉजिटिव है, ये तो बिल्कुल कम है, यानी इतना नहीं है कि इसको आप पॉजिटिव कह सकें। ये अलबत्ता जो होता है ये वाला एब्जॉर्प्शन वाला, ये वीक पॉजिटिव आ रहा है। मैंने कहा छोड़ दो उसको, ऐसे रहने थे। ये वो टेस्ट हैं, 2 टेस्ट हैं जो बड़े स्पेसिफिक टेस्ट समझे जाते हैं, लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें जो नॉन ट्रिपेनोमल टेस्ट हैं जो आप कराते हैं, वो तो इसमें फॉल्स पॉजिटिविटी के चांस तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और वो टेस्ट कौन से हैं? एक तो जहाँ हमारे ज़माने में पढ़ाया जाता था वो वेनिनल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट है, VDRL। और दूसरा तो हमें पढ़ाते थे वो रैपिड इन प्लाज्मा रीइजिन टेस्ट। अब फॉल्स पॉजिटिविटी इनमें जो होती है वो वायरल इन्फेक्शंस हैं, कुछ के नाम लिख दिए गए हैं, कुछ के नाम छोड़ दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे दे बिकम पॉजिटिव इन वेरिसिला इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, जैसे कि ये बता रहे हैं। और अभी ये करंट मेडिकल में ये बोल रहे हैं कि ये जो है इसके अलावा अगर कोई फीवराइल इलनेस है, बहुत लंबी हो गई है, मलेरिया है, लेप्रेसी है, इंजेक्शन ड्रग यूज़ है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, एडवांस एज है, हेपेटाइटिस C वायरल इन्फेक्शन है, एंडोकार्डाइटिस है, कनेक्टिविटी डिसऑर्डर्स हैं, प्रेगनेंसी है, इनमें पॉजिटिव आ जाते हैं। हमने तो ये भी कराए थे, ये तो पॉजिटिव आए ही थे, ये तो आना ही आना था, ये भी कराए थे उस पर्सन के जिसकी बारे में बात कह रहा हूँ। तो इसलिए जब भी आप किसी सीरोलॉजी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो डिपेंडेंसी हो गई है। अब इसकी तो ज़्यादा स्पेसिफिसिटी का मसला है, इसकी स्पेसिफिसिटी 75% से ज़्यादा नहीं है, सेंसिटिविटी इसकी 90% से है, इसकी जो है ना वो स्पेसिफिसिटी 95% है, 90% है, और इसकी सेंसिटिविटी जो है वो तकरीबन 98% है। अब ये पॉजिटिव यानी 2% इसमें रह गया, फिर भी अभी देखें ना उसमें 10% 2% का फ़र्क है। तो ये वो लोग बेचारा कहीं कोई इन्वॉल्व हो गया तो फंस जाएगा, वो बाहर नहीं जा सकता, वो अपनी ज़िंदगी में यही सोचता रहेगा कि मैं बीमार हूँ। फिर वो क्या होगा कि साइकोसिस डेवलप हो जाएगा उसके अंदर, वो अपना काम धंधा छोड़ देगा कि यार मरना था ही। जिसके पास जाएगा वो यही बताएगा कि भाई इसमें तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है और डेथ हो जाएगी आपकी अगर आप इसको सही तरह नहीं लेंगे। और वो देते भी इंजेक्टेबल फॉर्म में है, पेंसिलिन वगैरह, तो उसके लिए मुश्किल होता है उसको फॉलोअप करना। हमने तो दी थी उसे डॉक्सीसाइक्लिन दी थी, उसने जो है 3 महीने के बाद फिर 6 महीने खाई थी, यानी 9 महीने हो गए, उसे खानी पड़ गई। जब वो 6 महीने के बाद मैंने कहा ना ये नेगेटिव हो गया था और वो बाहर भी चला गया। वो कोई भी यानी ये जो था ये क्यों पॉजिटिव आया था ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि फाइलम जो है ना ये स्पायरोकीट है, ये स्पायरोकीट है और इसका जो है ना ये किसी भी स्पायरोकीट से क्रॉस रिएक्शन कर जाएगा अगर वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है। इसको किसी भी स्पायरोकीटल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में
ये पॉजिटिव आ सकता है। ये जो है ना डार्क टेस्टिंग, डायरेक्ट फील्ड माइक्रोस्कोपी, ये जो है ना ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। और द सीरियस फ्लूइड फ्रॉम द शंकार may be used to make an immediate diagnosis। यार एक गुमा है, हॉस्पिटल डू नॉट ऑलवेज हैव इक्विपमेंट और एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। एंड टेस्ट मस्ट बी डन विद इन 10 मिनट्स ऑफ एक्वायरिंग द सैंपल, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि ये इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, तो आपको इसके अंदर एविडेंस नहीं मिलता। इसके अलावा जो है कैरिड आउट सैंपल जो निकालते हैं शंकर का, उसमें DFA भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस एंटीबॉडी। लेकिन असल जो चीज़ जो बताने वाली थी वो PCR है। आजकल चूँकि PCR का ज़माना है, आप अगर कोई सीरियस फ्लूइड निकालने हैं तो PCR कर सकते हैं, वो फिर आपको पॉजिटिविटी दे देगा। अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड के, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आपको बता देगा। इसमें ये होता है कि जो डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज यूजेस एंटीबॉडीज टैग विद फ्लोरेसेंट, जो कि एक स्पार्कल सब्सटेंस है विच अटैच टू द स्पेसिफिक सिफिलिस प्रोटीन्स, उसके साथ उसको लगाते हैं तो वो सामने आ जाता है, आपके पास टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो PCR टेक्निक जो है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सिफिलिस जीन्स के चूजेस का ताल्लुक है। ये खाली ट्रेपेनोमा पैलिडम के लिए आप कर रहे हैं, तो PCR के अगर आप करें और पॉजिटिव आ जाए और पेशेंट को आपको एविडेंस भी मिल जाए, कोई एक एविडेंस मिल जाए इनमें से जो मैंने पहले बताए थे, फिर तो ये डेफिनेटली सिफिलिस हो जाएगा। दिस टेस्ट आर नॉट एज टाइम सेंसिटिव एज दे आर नॉट रिक्वायर लिविंग बैक्टीरिया टू मेक द डायग्नोसिस। असल में ये टेस्ट जो होते हैं ये बहुत डिलेड जो है ना, आपके पास सीरियस फ्लूइड अवेलेबल होता है, इसलिए बहुत डिलेड डायग्नोसिस होती है अगर डायरेक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। सिवाय इसके कि आप एक चांस है आपके पास शंकर या गुमा वहाँ आपको मिल जाए, या स्किन जिसके ऊपर जो है आपको पेस्ट्यूल्स मिल जाएँ या पेप्यूल्स मिल जाएँ, वहाँ से यूज़ कर लें फ्लूइड को और फिर डायरेक्ट फील्ड माइक्रोस्कोपी कर लें। सबसे अच्छा तो ये है कि आप बायोप्सी करें और उसके अंदर देखें, उससे अच्छी तो बात ही नहीं सकती। ये भी डायरेक्ट फील्ड माइक्रोस्कोपी से होगा। ये समझ लीजिएगा अच्छी तरह कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर कोई MCQ या BCQ आता है तो ये टिक किया जाएगा। इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि इसमें लोग नहीं करते हैं, उसको गलत डायग्नोसिस बना देते हैं, यानी गलत पिक कर लेते हैं। और जो है ना ट्रेपेनोमल नॉन ट्रेपेनोमल एंटीबॉडी, जिसके मैंने मैं अभी भी बताया था आपको, पिछली स्लाइड में है जो मैंने बताया था, वो ये जो टेस्ट हैं यानी 2 TPHA और FTABS, इसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं लोग। या ये इसको पॉजिटिव कर देते हैं, टिक कर देते हैं, या इसको टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब ये तो आपने ठीक है डायग्नोसिस बना दी, मैंने बहुत तफसील से आपको बताया है कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, इसकी लैब डायग्नोसिस की बात हो रही है। अब मैनेज कैसे करेंगे, इसकी हिस्ट्री ये है कि एक ज़माने में कीमोथेरेपी दी जाती थी। ये असल में डिजीज़ है बहुत पुरानी, ये कहते हैं कि 1000 ईयर से भी पहले भी पाई जाती थी, लोग मर जाते थे। लेकिन 1363 में जो है ना ये जो है पकड़ी गई है, उन्होंने कहा कि कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ है, कम से कम ये पता चला। और ये वो डिजीज़ है जो कि बुराइयों से फैलती है, यानी मतलब ये कि कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ है, चाहे विजाइनल हुआ है या एक्स्ट्रा विजाइनल हुआ है, वो छोड़ें आप, लेकिन बहरहाल ये उसकी हिस्ट्री भी निकाल लेते थे वो एक ज़माने में। अब ये क्या करते थे, प्रिपरेशन ऑफ मर्क्यूरी लेते थे अमंग दी फर्स्ट मेडिसिन, ये फर्स्ट मेडिसिन है जो इस्तेमाल होती है। और ये एजेंट जो मेटालिक एजेंट है इज इन फैक्ट हाईली एंटी माइक्रोबियल, प्रॉब्लम पॉइजनिंग के अलावा, मगर या तो जियो या मरो, ये वाली बात है, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो वे क्या करते थे, अल्सर्स के ऊपर इनक्शन देते थे और वैन इनहेल्ड सफिमिगेशन, क्योंकि मरकरी को ऐसे तो आप नहीं निकल सकते, उसका कुछ सॉल्ट तैयार करें। या तो उस ज़माने में तो फार्मेसी भी इतनी एडवांस नहीं थी, तो या तो उसके ऊपर प्रेशराइज देते थे, अल्सर को इनक्शन करते थे, या सफिमिगेशन करते थे,
इनहेलेशन फॉर्म में। उससे ये होता था सप्रेशन हो जाता था, लेकिन द ट्रीटमेंट बिकम वर्स एंड मोर लीथल देन द डिजीज। मतलब ये कि आप निकालते हैं किसी भी थेरेपी को तो रिस्क बेनिफिट रेशियो RBR निकालते हैं। अगर रिस्क ज़्यादा हैं तो आप इस्तेमाल नहीं करते दवा को, लेकिन अगर जो है बेनिफिट ज़्यादा है तो इस्तेमाल करते हैं। इसकी ये फार्मूले के ऊपर चल रहे थे वो। बाद में मालूम चला कि रिस्क ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स कम हैं, लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास कोई चॉइस नहीं था, या आदमी मरे या जिए उसके बाद। लेकिन बाद में जो है 1900 में मर्करी क्लोराइड, ये सॉल्ट है, स्टिल इन प्रोमिनेंट मेडिकल यूज डेट इन 1916 तक इस्तेमाल हुआ है। कंसिडर इफेक्टिव एंड वर्थवाइल ट्रीटमेंट, सिवाय इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो मर्करी के होते हैं, पॉइजनिंग के, क्रॉनिक मर्करी के, वो इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन वो भी अगर बर्दाश्त हो जाए तो ये ड्रग जो मर्करी का क्लोराइड है, ये फर्स्ट सब्सटेंस था, इलावा के आप जो है ना वो रॉ फॉर्म में मर्करी को इस्तेमाल करें। अब ये भी एक बनता है, MCQ बनता है, BCQ बनता है। फिर अर्ली इन्फेक्शन में क्या करते हैं कि सबसे अच्छी तो ये थी कि जारी बात है कि वो इंटरमस्कुलर आपको बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है या फिर बेंजोथिन पेनिसिलिन देनी है। अब इसमें जो है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरमस्कुलर बेंजोथिन पेनिसिलिन रिमेन्स अ सिंगल डोज, एक डोज लगा दे नहीं है, मंथ के बाद आप उसको चेक कीजिए और उसके बाद फिर मज़ीद डिसाइड कीजिए। और कहते हैं कि इसके लगाने के बाद 24 आवर्स में ये इन्फेक्शन हो जाता है, नॉन इन्फेक्टिव हो जाएगा पेशेंट। दूसरी जो ड्रग ऑफ चॉइस है डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन, जिसको मैंने इस्तेमाल की थी। ऑल्टरनेटिव चॉइसेस फॉर दोज एलर्जिक टू पेनिसिलिन ड्यू टू द रिस्क ऑफ द बर्थ इफेक्ट्स, दीज आर नॉट रिकमेंडेड। प्रेगनेंट वुमेन में तो आपके पास पेनिसिलिन है, अदर देन प्रेगनेंट वुमेन में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंट टू द मैक्रोलाइड, रिफाम्पिसिन एंड क्लिंडामाइसिन ऑप्शन प्रेजेंट। क्योंकि मैक्रोलाइड्स अच्छी ड्रग्स हैं, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन थर्ड और फोर्थ जो है जनरेशन कैफ्लोस्पिरिन भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। मेरिपेनिम्स जैसी दवा भी इफेक्टिव नहीं है। अभी सोचिए आप, कार्बापेनिम्स दे आर नॉट इफेक्टिव। ये सारी दवाएं जिनकी मैं बात दे रहा हूँ कि सारी की सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एंटीबायोटिक्स की हैं, दे आर नॉट इफेक्टिव। मगर एक दवा जो थी सेफ्ट्रैक्सोन थर्ड जनरेशन कैफ्लोस्पिरिन में भी इफेक्टिव है, पेनिसिलिन बेस्ड ट्रीटमेंट। ये कुछ दिन के लिए ये जो है ना इस्तेमाल हुई है, लेकिन ये रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। जब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तब ये ड्रग इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। लेकिन बहरहाल ये इफेक्टिव थी बेंजाइल पेनिसिलिन के पैरेलल। ये थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द ट्रीटेड पर्सन अवॉइड सेक्स until the sores are healed. In comparison to erythromycin for treatment in the early infection, there is a lack of strong evidence of the superiority of erythromycin to benzyl penicillin. बहुत अर्ली इन्फेक्शन के अंदर सिर्फ, यानी अगर किसी को प्राइमरी सिफिलिस हुआ उसमें आप एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद इस्तेमाल नहीं होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहली बात ये, आप इंटरमस्कुलर एक सिंगल डोज लगा दें और फिर रिपीट कर दें आप 1 मंथ के बाद, दैट इज़ आइडियल वन। अदरवाइज डॉक्सीसाइक्लिन डेली पहले 400 मिलीग्राम, पहले आप देंगे 400 मिलीग्राम 4 कैप्सूल, 2 सुबह 2 शाम फर्स्ट डे पे, और सेकेंड डे इस बूस्टर डोज है ये। फिर उसके बाद रोज़ाना 1 कैप्सूल देते रहें और 1 मंथ एटलीस्ट। इनमें डिलेड टू सेकेंड और थर्ड मंथ जैसे मैंने दी थी। अब वो देंगे तो फिर ये क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है, ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग है, बेंजाइल पेनिसिलिन, इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन को टाइम लगता है इरेडिकेट करने में। तो लेट इन्फेक्शन हैं इसके न्यूरोसिफिलिस के, बिकॉज ऑफ द प्योर पेनिट्रेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन। इसमें न्यूरोसिफिलिस में जो है ना उसकी पेनिट्रेशन अच्छी नहीं है, तो इसमें लार्ज डोजेज ऑफ पेनिसिलिन जी, जो कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, मिनिमम 10 days शुड बी गिवन। अब ये पेनिसिलिन जी जो होती है 6 hourly इस्तेमाल होती है, ये 10 मिलियन यूनिट्स तकरीबन इस्तेमाल करते हैं इसके, और 6 to 8 hourly इस्तेमाल करते हैं 10 days।
अगर एलर्जी के पेंसिलिन से तो डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर कराते हैं, वो अटेम्प्ट किया जाए, इन लो डोज में इसको थोड़ा थोड़ा देते रहें और इस तरह से वो एलर्जिक रिएक्शन को रिमूव करें। ये अंडर दी आप दे दें, स्टेरॉइड दे के सप्रेस रखें उसको, और फिर आप अटैम्प्ट करें, देने की कोशिश करें, क्योंकि यही ड्रग है जो कि लेट इन्फेक्शन के अंदर जो होती है पॉसिबिलिटी है हाई डोज के अंदर पेंसिलिन। अदरवाइज ये कि जो दूसरी ड्रग्स हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो मैंने जैसे ड्रग इस्तेमाल की थी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप को, मगर सीरोलॉजिकल क्योर कैन बी मेजर्ड व्हेन द नॉन ट्रेपेनोमल टेस्ट डिक्लाइन 4 गुना कम हो जाए in 6 to 12 months in early syphilis और 24 months in 2 साल तक in late syphilis। ये क्योर करना जो है ना, इसका क्योर जो है ना वो होगा, काफ़ी टाइम ले लेगा। तो आप तो देंगे 10 दिन तक, फिर इसको फिर मॉनिटर करेंगे, फिर अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है ये न्यूरोसिफिलिस, तो फिर ये आपको दोबारा 10 डेज का कोर्स करना पड़ेगा, हाई डोज में लगानी पड़ेगी, 10-15 मिलियन यूनिट्स, 20 मिलियन यूनिट्स, 6 आवर्ली 8 आवर्ली, फिर जाके ये ड्रग इफेक्टिव हो जाएगी। अब ये ट्रेपेनोमा को जब किल होता है या कोई पैरासाइट या ट्रेपेनोमा या कोई आप कह लें कि स्पायरोकीट्स, तो उससे एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं जेरिक्स हेक्सीमर रिएक्शन। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट है। इट्स फ्रीक्वेंटली स्टार्ट विद इन 1 आवर। जैसे ही आप लगाते हैं ड्रग को इंट्रावेनस, वो ये सामने आ जाता है, वो लगता है कि पेंसिलिन से ये रिएक्ट कर रहा है, नहीं पेंसिलिन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि जेरिक हेक्सीमर रिएक्शन। क्योंकि क्या होता है कि ये जो है ये इसलिए होता है कि ट्रेपेनोमा किल हो जाते हैं, रप्चरिंग सिफिलिस बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और उसके जो अपने जो है बाई प्रोडक्ट्स, उससे ये होता है। क्या होता है? फीवर, मसल पेन, हेडेक एंड टैकीकार्डिया caused by the cytokines released by the immune system in response to the lipoproteins जो निकले हैं रप्चरिंग सिफिलिस से, वो इम्यून रिस्पॉन्स उसको टेक ओवर करता है, जिसकी वजह से ये सारा आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है। पूरी बॉडी के अंदर आपको रेडनेस नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्रीटमेंट को रोक देंगे, या तो उसकी डोज को थोड़ा कम करेंगे, या फिर आप साथ में जो है वो स्टेरॉइड ऐड कर दीजिए। और ज़्यादा कि लॉन्ग एक्टिंग अगर आपके पास एंटीहिस्टामिन है वो भी दे सकते हैं इसमें। प्रेगनेंसी में क्या करेंगे, इसमें सिर्फ आपको एक ही चॉइस है, पेंसिलिन। इसके अंदर जो है ना वो डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन या एज़िथ्रोमाइसिन, इनको आप नहीं दे सकते, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो टेरोजेनिक भी हैं और वो अलाउ नहीं करते। ओनली पेंसिलिन रिसोर्स, पेंसिलिन जी या पेंसिलिन जो है बेंजाथीन पेंसिलिन लॉन्ग एक्टिंग, इनमें से कोई चॉइस करें, वो ही इफेक्टिव होगी, एंड दैट इज़ द ओनली चॉइस। प्रिवेंशन ये है कि वैक्सीन बनाने की इन्होंने कोशिश की है, अभी तक तो कोई भी कामयाबी नहीं हुई है। मैं सवाल फिर ये करूँगा दोबारा अपने स्टूडेंट से कि क्यों अभी तक इतने साल हो गए, यानी इतनी सदियाँ गुजर गई हैं, 8 सदियाँ तो गुजर गई हैं ये पकड़े हुए कि सिफिलिस क्या होता है, तो वैक्सीन अभी तक आप नहीं बना सके, क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? ये आपको जवाब देना है। और जवाब देने के लिए हमारे पास जो है ना वो मैंने आपको बता दिया था, मी के नाम से हमारा ग्रुप है जो कि आपको मिल जाएगा, और उसको आप इसमें अगर शामिल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने किसी साथी से ले सकते हैं। मी को ज्वाइन करें और उसमें जवाब लिख के भेजें कि क्यों इसकी वैक्सीनेशन जो है ना अभी तक नहीं बना सके। फिर ये कि सेक्चुअल जो आप इंटेलिजेंस करते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहतर है कि वो लोग तो मानेंगे नहीं, फिर आपको सिफिलिस हुई आपकी बीवी को भी हो जाएगी, इसलिए आपको मजबूरन लेटेक्स कंडोम्स कैन रिड्यूस द रिस्क। इस पॉसिबिलिटी ये है कि अच्छी तरीके से आप लेटेक्स कंडोम इस्तेमाल करें, और वो कंडोम जो हो उसको अच्छी तरह चेक करें कहीं लीकेज ना हो,
ये भी ज़रा सा इम्पोर्टेंट बात है। असल बात तो ये है कि बुराई तो बुराई है, गुनाह कबीरा तो गुनाह कबीरा है। तो लोगों को क्या करें कि आप हेल्थ जो है ना एडवाइसेस दें, अराउजल पर प्रोड्यूस करें कि एब्सटिनेंस करें, ख़ास तौर पे कि जो कहलाता है इलीगल जो एक्ट करते हैं लोग, उनको ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि खुदा के वास्ते इससे दूर रहें। जो ज़िनाकारी है उसके बारे में बात हो रही है, या सोडोमी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इससे बच जाए, गुनाहों से तौबा करें। गुनाह कबीरा है ये सिर्फ जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार से माफ़ हो सकता है, और आइंदा के लिए तौबा तो नसूह करना पड़ेगी इसके साथ, आइंदा में ये काम नहीं करूँगा, तो फिर तो ये बच सकते हैं आप फर्दर प्रॉब्लम से। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आपको जितनी भी बाज़ारी औरतें हैं या जिनको आप नहीं जानते, उनसे ये आपको लगेगी, जो लोग इसके शौकीन हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बस एब्सटेनेंस का लफ्ज़ सही है। स्क्रीनिंग का यही था, मैंने अभी आपको बता दिया कि स्क्रीनिंग CDC करवाती है। नोटिफाइबल डिजीज़ अगर किसी एक को भी हो गई तो नोटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई हमें पढ़ने पकड़ी है। इसका मतलब है हेल्थ प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ विच विल देन आइडियली प्रोवाइड द पार्टनर नोटिफिकेशन टू द पर्सन पार्टनर। उसको बताए, अगर वाइफ है तो हस्बैंड को बताए, हस्बैंड है तो वाइफ को बताए कि एब्सटेनेंस करना होगा जब तक ट्रीटमेंट ना हो जाए, और ट्रीटमेंट होने के बाद भी जो है ना वो अपने पार्टनर्स को चेंज ना करें। कौन सी डिजीज़ है याद रखें, सिफिलिस के साथ, जो कि इसके साथ को इन्फेक्शन होती है। को इन्फेक्शन कौन सा है? वो है, आपको पता है, HIV। तो HIV को जब सिफिलिस पकड़ते हैं तो HIV के लिए भी जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए। जब HIV को पकड़ते हैं तो फिर सिफिलिस को भी लिए भी आपको क्रॉस चेक करना होता है। ये एक बात भी बड़ी अहम है। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि जो मुल्क छोड़ते हैं उनको भी स्क्रीन करते हैं। ये हमारे मुल्क में इसलिए, हमारे मुल्क से जो भी बाहर जा रहा होता है उसका लाजमीत किया जाता है। और वहाँ क्या होता है, बाहर से जो लोग आ रहे होते हैं तो वहाँ पे भी स्ट्रेटजीज़ हैं बनाई हुई। जैसे नोटिफाइड यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे कैनेडियन एसोसिएशन है, वो लोग कहते हैं कि जो बाहर उनका आदमी जाएगा वो टेस्ट करा के जाए पहली मरतबा जब बाहर निकलता है। तो इसको आपको एक्सक्लूड कर फिर आप अपने मुल्क छोड़ सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसी में ये आदमी जिसका डिस्कशन हुआ है ये फंस गया था। मैंने बहुत तफसील से बताया कि वो नेगेटिव उसको करना पड़ा, और नेगेटिव करके फिर उसके बाद वो दुबई गया, जबकि उसके अंदर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। 5-6 साल से वो आता है, 6 महीने बाद आता है या साल बाद आता है, मेरे पास आता है। मैं उसको बताता हूँ तुम ठीक ठाक हो, आपको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं है, तो उसको जो है मल्टीविटामिन वगैरह दे देते हैं और उसको वो चला जाता है, और उसको ठीक ठाक है, ये ऑल राइट। तो अगर फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर आप पेशेंट को कैसे करेंगे मैनेज ना, तो उसको समझाना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा, फिर भी जो है थेरेपेटिक ट्रायल दे दें। ये एक मैसेज है जो कि आपको देना था। और आखिरी में बात यह है कि आप अपने मीडिया को इस्तेमाल करें, आप सोर्सेज इस्तेमाल करें, आप लेक्चर की सूरत में, आप वॉक की सूरत में। स्टॉप सिफिलिस। अगर जहाँ एंडेमिक है ख़ास तौर पर उन एरिया में तमाम लोगों को बताएं कि ये किलिंग डिजीज़ है, आदमी को मरना है और रगड़ रगड़ के मरना है, तो प्लीज़ ये आप उनको बताएं। दिस इज दी स्टॉप सिफिलिस के बारे में पोस्टर्स वगैरह या जो भी आप कर सकते हैं ये आप ज़रूर करें जिस एरिया में को आप बिलोंग करते हैं, जहाँ एंडेमिक है। सब एंडेमिक है। कराची में तो डिस्क्राइब अभी तक मैंने कहा वो किसी ने की ही नहीं है। कराची में मैंने जो केसेस देखे थे वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो टर्शरी सिफिलिस के थे। प्राइमरी का मैंने कोई केस नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर है डर्माटोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना वो डेफिनेटली उनको पता होगा कि यहाँ पे ये इसको किस तरह क्लासीफाई करेंगे। इस प्रोडक्ट केस है ये सब एंडेमिक है या एंडेमिक है, ये किस टाइप का जो है ना ये रखता है इंसिडेंस यहाँ पे, ये वो डिस्क्राइब करके बताए ना हमको। हमें तो नहीं पता, हम तो क्लिनिशियन हैं। हमारे पास जो कोई चीज़ हो जाती है किसी किस्म की कोई मसला तो फिर वो लेके आता है, सिस्टमिक प्रॉब्लम लेके आता है, ऑर्गेनिक डिजीज़।
वमा अलैना इल्लल बलाग। ऑल्दो द लेक्चर ये प्रोलॉन्ग हो गए हैं, दोनों लेक्चरों को अगर जमा करें तो 1.5 घंटे के लेक्चर हो जाते हैं, जबकि ये अभी भी कम है। जो हमारे उस्ताद ने 7 दिन तक ये लेक्चर लिया था जब हम पढ़ते थे, 1977-8 की बात है। उन्होंने 77 में हमारे प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी ने 7 दिन तक 1-1 घंटे का लेक्चर लिया था। वो नोट्स जो उन्होंने लिखवाए थे कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे तो उस ताकि लोग लिखें, और उनका बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की हुई थी इस पर। तकरीबन कुछ 40-50 पेज मैंने लिखे हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। हर चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की, अलग अलग करके डिस्क्राइब की। एनीवे इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखें और 2 दफ़ा देख लें, इसको लाइक कर दें और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हौसला बढ़े हमारा मज़ीद लेक्चर्स देने के लिए। वेरी थैंकफुल टू यू। वमा अलैना इल्लल बलाग।